Hello, good morning everyone. So today we'll be starting with your first topic for 12th standard, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. So पहिले आपण सगळ्यात काय बघणार आहे? We will see the definition of partnership. Okay? So let us come to the definition of partnership. Firstly, they have given us the meaning. Partnership is an organization where there is association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. So what all is important? It is an association of two or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit. So share profits or losses of the firm. Okay. So last year आपण जे final accounts बघितलेले किंवा last year the final accounts which you had prepared were relating to a sole trader. Okay. So पहले difference क्या होता है sole trader में और partnership में? Let us see in short. Okay. So there are two types of forms of organization. So two types of forms of organization में पहला जो फॉर्म होता है दैट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्म इज इट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकेंड फॉर्म इज इट मे बी अ पार्टनरशिप फॉर्म. ओके, सो what can we observe in the sole trading concern and the partnership firm? So firstly, let us take some points into consideration. Sole trading concern is just an organization of one person. Okay, so it is also called as a one-man show. He is the person who invests capital into the business. He is the person who is running the business, who is managing the business, who is taking care of the business. Okay, so उसमें कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? वो खुद. उसका मैनेजमेंट कौन देखता है? वो खुद. उसके रिस्क कौन बेयर करता है? वो खुद. ओके, तो एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ. सो इट इज a organization which is run by only one person. Whereas partnership firm is an organization which is formed by two or more people who have come together. Okay, so you can see it that we have marked it is an association of two or more persons coming together to carry on a business. Okay, so किसके लिए वो इकट्ठा आए होंगे? वो इकट्ठा आए हैं to carry on the business. They have come together to carry on the business. बिझनेस करायसाठीच येणार, टाइमपास करायसाठी नाही येणार, राईट? नाहीतर त्याच्यात लीगल रिलेशनशिप क्रिएट व्हायची काही नेसेसिटी नाही, त्यांना एकत्र काम करायची काही गरज नाही. सो दे हॅव टू कम टुगेदर टू डू बिझनेस अँड बिझनेस इज ऑलवेज डन विथ एन इंटेन्शन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ओके, सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज बेसिकली रिलेटेड टू वन पर्सन अँड पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू two or more people. Okay, so these two types of organizations have a basic difference. Clear? Okay, so why does a partnership firm come into existence? Sole trading concern और partnership के maximum features जो है वो common रहते हैं, but कुछ कुछ deficiency रहती है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, वो ओवरकम करने के लिए the partnership firm comes into picture. Now when we are saying there is one person, that one person is only bringing in the capital, he is only taking care of the management of the business, he is the only decision maker, तो उसकी गलतियां भी ज्यादा हो सकती है. तो इसके लिए ये जो डिफिकल्टीज होती है, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये सब ओवरकम करने के लिए विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर? दैट इज पार्टनरशिप. So partnership is coming together of two or more people for conducting the business. Did you get the meaning? Why it is called as a partnership? Because two or more people are coming together, joining hands to do business with an intention of earning profit. Now let us see the definition. Now what is this? They have mentioned in the first line itself, Indian Partnership Act 1932. What is it? The Indian Partnership Act 1932 section 4 defines partnership. Now why does an act define partnership?
बिकॉज असं झालं असणार की earlier also there were people who were coming together to do the business, correct? So there must have been a need felt for bringing up some law or bringing up some regulation to control these partnerships. ओके, सो ह्या पार्टनरशिपला इंडियामध्ये कंट्रोल करणारी ऍक्ट कुठली आहे? तर दॅट ऍक्ट इज द इंडियन पार्टनरशिप ऍक्ट. तो ये एक्ट जो है वो पार्टनरशिप के लिए रूल्स बनाता है. ये एक्ट में ही लिखा होता है कि पार्टनरशिप के अलग अलग रूल्स क्या होने चाहिए, उसका ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए, ये सब कहाँ लिखा होता है? इट इज रिटन इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. Okay, so when people started forming partnership, there was a need felt to bring some control, to bring some support system to look after the partnerships so that people don't come and cheat one another. So this act has come into picture in the year 1932. Okay, so hence it is called as the Indian Partnership Act because it governs what is stated in its name, partnerships, and it has come into force in the year 1932. So Indian Partnership Act 1932 section 4. Section 4 म्हणजे काय? So when there are acts which are formed, what is written in the act is written in a point form. आपण जसं म्हणतो ना की आपण आन्सर लिहिताना we write it in the point form. So whenever an act is formed, there are sections written under the act and that a particular section explains some details about the act. सो पूर्ण ऍक्ट जी असते ती एसे फॉर्म मध्ये लिहिलेली नसते. देर आर वेरियस सेक्शंस. तो हर एक सेक्शन के बारे में एक्ट जो कन्वे करना चाहता है वो एक एक पॉइंट लिखा जाता है. तो ऐसे ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 में क्या लिखा गया है? डेफिनेशन दिया हुआ है पार्टनरशिप का. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. Agreed to share the profits, important, agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. Very important definition. त्याची लैंग्वेज काय है? क्लियरली फर्स्ट आप समझ के लो क्या लैंग्वेज बोला गया है. इट इज द रिलेशन. पार्टनरशिप क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स, between persons who have agreed to share the profits of the business. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कि जो भी लोग इकट्ठे आ रहे हैं फॉर डूइंग द बिजनेस, देयर इंटेंशन इज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. ओके, तो वो कोई बिजनेस करने के लिए एक साथ आए हुए हैं और उनका उसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस विच दे आर डूइंग. प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ओके, अभी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या? तो जो पार्टनरशिप्स होती है उसमें अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, हम प्राइमली 3 एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये जो टर्म यूज की है वो समझ जाएगा. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप आर एक्टिव पार्टनर्स. सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनर्स आर से नॉमिनल पार्टनर्स एंड थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर्स आर स्लीपिंग पार्टनर्स. ओके, और भी बाकी टाइप के बहुत पार्टनर्स होते हैं बट मैं इस डेफिनेशन के लिए ये 3 ही पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं. सो व्हाट आर द एक्टिव पार्टनर्स इन द बिजनेस? एक्टिव पार्टनर्स मतलब क्या? द पीपल हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो एक्चुअली बिजनेस का काम संभाल रहे हैं, जो बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो रोज ऑफिस जाते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं पूरा बिजनेस का, हु आर एक्टिवली कंडक्टिंग द बिजनेस, दे आर कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनर्स. नॉमिनल पार्टनर्स कौन होते हैं? ये पार्टनर्स जो होते हैं वो सिर्फ अपना नाम पार्टनरशिप को दे देते हैं, वो खुद पार्टनरशिप में काम में उसके इन्वॉल्व नहीं होते. ओके, सो दे आर ओनली लेंडिंग देयर नेम टू द पार्टनरशिप फर्म. दे आर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द फर्म. अभी ऐसे क्यों होगा? से एक बहुत बड़ा लॉयर है जो अभी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, उसने बहुत 20-30 years प्रैक्टिस कर ली, उसको अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है. ओके, बट सम अदर यंग फ्रेशर लॉयर से कम्स अप टू हिम एंड सेज कि सर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे क्या? तो आपका क्लाइंट बेस जो है वो मेरे को मिल जाएगा, मैं बहुत एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हूं, मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, आपकी प्रैक्टिस और बड़ा करूंगा. ओके, सो दैट टाइम वो जो ओल्ड पार्टनर है उसका इंटेंशन है क्या काम करने का?
तो नहीं है, उसका इंटेंशन क्या है, पर उसको खुद का नाम चलाना होगा क्या आगे, यस चलाना होगा, तो विल ही एग्री टू दिस प्रपोजल, ऑब्वियसली यस ही विल एग्री टू दिस प्रपोजल। तो उस टाइम वो सिर्फ क्या देने वाला है, दैट सीनियर लॉयर विल गिव हिज नेम टू दैट जूनियर लॉयर हु इज प्रैक्टिसिंग, और उसको बोलेगा कि तुम काम करो, मैं सिर्फ मेरा नाम देता हूं, मैं मेरे क्लाइंट्स देता हूं, मैं मेरा गुडविल देता हूं तुम्हें, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, द सीनियर लॉयर विल बी कॉल्ड एज द नॉमिनल पार्टनर। लास्ट टाइप जो है वो होता है स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स मतलब बिजनेस में सिर्फ पैसा डालते हैं, दे आर जस्ट गिविंग मनी इनटू द बिजनेस, बोल रहे हैं कि आप बिजनेस चला लो, बाकी के पार्टनर्स हम रोज काम पे नहीं आएंगे, हम पैसा दे रहे हैं, ओके। सो दे आर लेंडिंग मनी टू द बिजनेस, सो दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर्स। अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसमें आपको क्लियरली समझ गया होगा कि एक्टिव पार्टनर्स आर द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द बिजनेस, करेक्ट। बाकी नॉमिनल पार्टनर्स रहे या स्लीपिंग पार्टनर्स रहे, वो एक्चुअली काम कर रहे हैं क्या, नहीं, वो बिजनेस में कोई बेनिफिट अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसका बेनिफिट फर्म को होने वाला है, ओके। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग बट नॉट एक्टिवली डूइंग द बिजनेस, हेंस इट इज कॉल्ड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल कब बोला जाएगा, अगर बिजनेस के सब पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स है, कोई भी स्लीपिंग या नॉमिनल पार्टनर उस बिजनेस में है ही नहीं, तो उसमें क्या बोला जाएगा, कैरिड ऑन बाय ऑल। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सब ऐसे अगर पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा कि इसमें एक एक्टिव पार्टनर है, एक नॉमिनल, एक स्लीपिंग, तो उसमें काम कौन करने वाला है, एक्टिव पार्टनर। पर क्या वो फर्म के बिहाफ पे, सब पार्टनर्स के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है फर्म के लिए, यस ऑब्वियसली ले सकता है। तो वो as a representative of the firm he can enter into contracts, he can take the decisions, तो उसके पास सब rights होते हैं, तो इसलिए बोला गया है any one of them acting for all। तो सब active partners है तो carried on by all। अगर एक एक्टिव पार्टनर है, बाकी लोग सिर्फ पैसे या खुद का नाम दे रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे, तो कौन काम कर रहा होगा, एक्टिव पार्टनर्स काम कर रहे होंगे। उनके पास राइट होता है क्या फर्म के बिहाफ पे डिसीजंस लेने का, यस होता है, ओके। सो दे हैव फुल राइट टू टेक डिसीजंस फॉर देयर पार्टनरशिप फर्म, फॉर or on behalf of the other partners also, okay। So this definition I think I have explained clearly. Again let us go through Indian Partnership Act 1932। remember Indian Partnership Act 1932 कौन सा सेक्शन बोलता है, section 4 defines the partnership as it is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business। losses नहीं बोला इधर, profits बोला है, ठीक है। losses क्यों नहीं बोला है वो बाद में डिस्कस करेंगे जब सेक्शंस आएंगे related to that। इधर सिर्फ बोला है it is the relation between people who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। carried on by all सभी कैरी आउट कर रहे हैं, सभी एक्टिव पार्टनर है, और एनी वन कोई उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बनके सबके बिहाफ पे बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, ओके। सो दैट इज अ पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 हैज डिफाइंड इंडियन पार्टनरशिप्स और अ पार्टनरशिप एज relationship between persons who have agreed to carry on the business carried on by all or any one of them acting for all, okay। I hope I'm clear with the definition. Now moving on to the next point, that is features of the partnership firm। so features में जो पहला feature बोला गया है that is agreement, okay। so what is an agreement? agreement is basically एक पर्सन ने दूसरे को जाके बोला चलो हम ये बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, और दूसरे पर्सन ने उसका जो ऑफर था वो एक्सेप्ट किया, तो उसको क्या बोला जाता है, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, ओके। सो व्हेन वन पर्सन ऑफर्स एंड द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स द ऑफर इट इज कॉल्ड एज अ एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट? because written agreement can be put forward as a evidence in the court of law। तो कोर्ट ऑफ लॉ में कभी आपका और आपके पार्टनर का कुछ झगड़ा हुआ, there is a dispute between you two, then if you need to move to the court of law, तो आप कैसे मूव करोगे, आपके पास अगर कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो कोर्ट को क्या लगता है, कोर्ट नीड्स अ रिटन प्रूफ, हेंस एग्रीमेंट इज
जनरली रिटन, और जब वो रिटर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. ओके, सो दैट इज एग्रीमेंट. It is, if it is in a written form, it is called as a partnership deed. Okay, so it is a partnership deed. Next, number of partners. Number of partners में limit क्या है, minimum 2. So minimum कितने partners लगते हैं, minimum 2 partners are needed to start a partnership firm and maximum number of partners are 50. Okay, maximum कितने हैं, maximum number is 50. But according to which act? According to Companies Act 2013. तो पार्टनरशिप एक्ट ने खुद ने नहीं बोला है कि मैक्सिमम लिमिट कुछ होनी चाहिए पार्टनरशिप्स पे. पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ क्या बोला गया है, हमने डेफिनेशन भी देखा है. व्हाट इज इट, 2 और मोर पर्सन्स चाहिए, दैट इज इट. ओके, उन्होंने मैक्सिमम नंबर का क्राइटेरिया नहीं दिया है. मैक्सिमम नंबर का क्राइटेरिया किस एक्ट में दिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013. नेक्स्ट इज बिजनेस अंडरटेकन बाय द पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल. कैसा बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. लॉफुल बिजनेस मतलब क्या, स्मगलिंग करेंगे चलेगा क्या, डाका डालेंगे चलेगा क्या, खून करतायत, दरोडे घालतायत चालेल का, हे बिझनेस आहेत, हे बिझनेस करायला एकत्र येतील तर पार्टनरशिप होईल का, नाही. द बिझनेस शुड बी लॉफुल. इलीगल बिझनेस इज नॉट परमिटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट. सो दे शुड हैव कम टुगेदर टू कॅरी ऑन लॉफुल बिझनेस. नेक्स्ट, शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अँड लॉसेस. सोल ट्रेडिंग कन्सर्न मध्ये लास्ट इयर काय व्हायचं, वेन वी यूज टू गेट द फिगर फॉर नेट प्रॉफिट इन आर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, वी यूज टू डिरेक्टली शिफ्ट इट टू वेअर, शिफ्ट इट टू द प्रोप्रायटर्स कॅपिटल अकाउंट. करेक्ट, अमित कॅपिटल अकाउंट असेल, सुमित कॅपिटल अकाउंट असेल, त्याला आपण शिफ्ट करून टाकायचो. बट हिअर इट विल नॉट बी शिफ्टेड टू एनी पर्टिक्युलर पार्टनर्स अकाउंट, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन 2 पार्टनर्स. सो बिजनेस का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. सो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का शेयरिंग होगा बिजनेस में अमंग द 2 पार्टनर्स और मोर पार्टनर्स. ओके, नेक्स्ट, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट. तो कैसे शेयर होता है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट. इफ एग्रीमेंट में नहीं बोला गया है, देन इट विल बी इक्वल. ओके, इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, देन इट विल बी इक्वल. ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हाला जर सम में अगर आपको दिया जाए ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3, देन जो नेट प्रॉफिट आपकी फिगर आएगी वो आपको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है इन द रेशियो 2:3. बट अगर सम साइलेंट है, सम में कुछ नहीं बोला गया है कि पार्टनरशिप का रेशियो क्या है या 2 पार्टनर्स कैसे शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, तो इट हैज टू बी डन इक्वली. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. आपको सम्स में बार बार ये यूज करना पड़ेगा. क्या यूज करना पड़ेगा, अगर सम में रेशो दिया है तो प्रॉफिट उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर सम में रेशो नहीं दिया गया है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इधर क्या बोला गया है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल. दैट इज पार्टनर्स आर लाइबल टिल द लास्ट रूपी इन देयर पॉकेट. If assets of the business is not sufficient to pay the liabilities, then personal property of partners can be used. If any one of the partner is declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partners. अभी ये केस क्या है, थोड़ा शांति से समझो तो आपको समझ जाएगा. ओके, listen to it carefully whatever I am saying. Okay, so suppose let us consider that there were 3 partners. Okay, there were 3 partners in the partnership firm, say A, B and C. Okay, so now they have given that the liability of the partners is unlimited, joint and several. अभी इसमें क्या केस होता है कि फर्म ने बहुत सारे लोन्स लिए रहते हैं. ओके, फर्म ने बहुत सारे लोन्स लिए रहते हैं, फर्म के एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, व्हिच मींस द फर्म हैज बिकम इंसॉल्वेंट. ओके, ये केस 1 ले रहे हैं हम. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्म हैज बिकम इंसॉल्वेंट. इफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, क्या करना पड़ेगा, फर्म के पास तो पैसे बचे नहीं, फिर आपको किसको पैसे देने पड़ेंगे टू कॉम्पेंसेट द लॉसेस ऑफ द फर्म और टू कॉम्पेंसेट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म. ए, बी एंड सी तीनों को मिलके पैसे देने पड़ेंगे टू कॉम्पेंसेट द फर्म.
दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब उनके पर्सनल एसेट्स भी सैक्रिफाइस हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ABC की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इसलिए अगर उनका पार्टनरशिप फर्म भी लॉस में जाता है या उसको सफर करना पड़ता है ड्यू टू हैवी लाइबिलिटीज, बहुत सारे बैंक के कर्जे में डूब गया है, तो उसको सेव कौन करेगा? तीनों पार्टनर मिलके सेव करेंगे। उनके घर के एसेट्स उठा के, पर्सनल एसेट्स उठा के भी उनको देने पड़ सकते हैं, बिकॉज देयर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ओके, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्या बोला है? जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल मतलब क्या? अभी केस 1 में क्या हुआ था कि फर्म इंसॉल्वेंट हुई थी। अभी इधर ही हम लेते हैं केस 2। इसमें क्या हुआ? फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है। फर्म को अभी से 10 लाख रुपीस पे करने हैं आउटसाइडर्स को और फर्म के पास पैसा नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल 10 नहीं, अभी हम थोड़ा डिविजिबल फिगर लेते हैं, ठीक है। सो 15 लाख रुपीस पे करने हैं फर्म को टू द आउटसाइडर्स। तो क्या होना चाहिए आइडियली? चलो हम मानते हैं पार्टनर्स का सबका इक्वल कैपिटल है एंड ऑल, ये सब अलग है, तो हम अज्यूम करते हैं से 5 लाख तीनों पार्टनर्स देने वाले हैं। बट अभी 2 लाख देने के बाद सी क्या बोलता है? सी बोलता है मेरे पास अभी पैसे बचे ही नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 लाख है, मैं सिर्फ 2 लाख ही दे सकता हूं, मैं मेरे 3 लाख नहीं दे सकता। ऐसे सी क्लेम कर सकता है। मतलब सी भी इंसॉल्वेंट हुआ, खुद की गाड़ी बेच दी, खुद की मशीनरी थी वो भी बेच दी, सी के पास भी पैसे नहीं बचे, उसके पास 2 लाख ही बचे, उसने 2 लाख दे दिए। अभी उसने हाथ खड़ा कर दिया, मैं 3 लाख नहीं दे सकता। अभी ये 3 लाख कौन देगा? तो अभी ये 3 लाख देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से आ जाती है ए और बी के ऊपर। इसको बोला जाता है जॉइंट एंड सेवरल। मतलब एक तो अनलिमिटेड तो है ही, फर्म डूब रहा है तो भी उसकी हेल्प करो, बट फर्म को पैसे देने के लिए किसी पार्टनर के पास भी पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी तुम ही खुद के जेब से पैसे दो। ओके, सो दैट इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है इन द पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र with effect from 1st April 2005। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि महाराष्ट्र में कब से कंपलसरी है? 1st अप्रैल 2005 से पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करके लेना मैंडेटरी है। आगे उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें क्या बोला है? इट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है, इट इज ऑप्शनल। अभी इधर आप एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज रेकमेंडेड। ओके, तो अभी रेकमेंडेड क्यों है ये समझ लो। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, देयर इज वन पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर वो रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू टेक लीगल एक्शन ऑन समवन एल्स। ओके, सो पार्टनरशिप फर्म जब तक रजिस्टर नहीं होती तो उसको उसका एग्जिस्टेंस नहीं मिलता, उसको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता एग्जिस्टेंस का। इसके लिए उसके ऊपर क्या लिमिटेशंस आ जाते हैं? दैट इट कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट समवन एल्स, लीगल एक्शन वो नहीं ले सकते। इसलिए रेकमेंड किया जाता है, जो भी लॉयर्स या जो भी इंटरमीडियरी डील कर रहा है पार्टनरशिप में, वो क्या करते हैं? वो रेकमेंड करते हैं कि आप रजिस्टर करके लो। ओके, कंपलसरी कहाँ है? एक ही चीज, कंपलसरी इन महाराष्ट्र। इंडिया में कंपलसरी है क्या? इंडिया में मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ऐसा कोई कंपल्शन किया नहीं है, इट इज ऑप्शनल बट इट इज रेकमेंडेड। रेकमेंडेड क्यों? बिकॉज इफ इट इज रजिस्टर्ड देन इट कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पीपल। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैंने जैसे बोला पहले क्या होता था? अकेला इंसान ओन भी करता है, पैसे भी देता है, मैनेज भी करता है, सब कौन कर रहा है? एक ही इंसान। अभी क्या हो गया है? जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सब पार्टनर्स मिलके फर्म को मैनेज कर रहे हैं, सब पार्टनर्स मिलके धंधा चला रहे। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट होता है समझने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप। क्या बोला गया है? लेट अस सी। ईच पार्टनर वर्क्स इन 2-fold कैपेसिटीज। हर पार्टनर क्या करता है? उसके लिए 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। अ पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म with outsiders and with other partners he acts as an agent.
अभी क्या बोला गया है, मैंने जैसे बोला एक एक्टिव पार्टनर रहा फॉर्म में, बाकी सब स्लीपिंग है, नॉमिनल है, ऐसे पार्टनर है, वैसे पार्टनर है, तो क्या वो पार्टनर सबके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है? यस। कैन ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? यस। तो ये जो वो कर रहा है डीलिंग बाहर वाले लोगों के साथ, वो डीलिंग को आप क्या बोलोगे? वो एक्ट कर रहा है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म। तो वो फर्म का इंचार्ज बन के कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, करेक्ट? तो वो फर्म के बिहाफ पे, अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है एज अ हेड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो उस टाइम ही इज एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल, एंड विथ अदर पार्टनर्स ही एक्ट्स एज अ एजेंट। अदर पार्टनर ही एक्ट्स एज अ एजेंट मतलब क्या? वो एजेंसी का फंक्शन निभा रहा है ना, इंटरमीडियरी। सब पार्टनर्स उठ के कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं चले आते, करेक्ट? ही इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन देयर बिहाफ, करेक्ट? सो दैट इज ही इज एक्टिंग लाइक अ एजेंट। तो वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ प्रिंसिपल, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग द अदर पार्टनर्स। तो एंड विथ अदर पार्टनर्स ही एक्ट्स एज एन एजेंट। तो वो एजेंट बन के काम कर रहा है रिलेटेड टू अदर पार्टनर्स, ओके? सो दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट। सो दो कैपेसिटीज में वो वर्क करता है, बाहर वालों के साथ ही इज द इंचार्ज ऑफ द फर्म, एंड पार्टनर्स के लिए ही इज द एजेंट वर्किंग ऑन देयर बिहाफ। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। तो अ पार्टनरशिप फर्म, हमने डिसोल्यूशन जब कल इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, तब हमने डिस्कस किया था डिसोल्यूशन मतलब क्या? फर्म जब बंद होती है तो दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करने के लिए इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट दिया है कि फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है? बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। तो फर्म अगर बंद करनी है, पार्टनर्स ने सबने म्यूचुअली एग्री किया है आपस में कि चलो अभी फर्म बंद करते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा या अच्छा चल रहा है बट अभी हमको बंद करना है। सो वट एवर द रीजन माइट बी, क्या करना पड़ेगा? 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी और फर्म बंद कर दिया जाएगा। ये 14 दिन की नोटिस किसको? तो एक बॉडी होती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ओके? तो उधर कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हम पार्टनरशिप क्लोज कर रहे हैं। तो कौन सी नोटिस? 14 डेज नोटिस देनी पड़ती है। लास्टली उन्होंने बोला है फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज और रिटायर्स, बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन। तो ये केसेस हुए पार्टनर के साथ, इधर ही रिटायर्स, वो बाहर चला गया है, बाकी लोगों को कंटिन्यू नहीं करना है, उनको भी बंद करना है। ही बिकम्स इंसॉल्वेंट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था इधर ABC का केस, इधर C इंसॉल्वेंट बन गया, तो इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म। तो तब A और B को भी पार्टनरशिप फर्म बंद कर देना पड़ेगा, ओके? सो दैट टाइम इंसॉल्वेंट हो गया तो, या इनसेन हो गया तो, इनसेन मतलब मेंटली उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो ये तीन चीजें जब होती है ना, ये दो चीजें जब होती है ना, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट और इनसेन, तब ऐसा इंसान कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता, कभी कोई एग्रीमेंट वो कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर सकते, तब आपको क्या करना पड़ता है? डिसोल्यूशन। ओके, सो सब फीचर्स आपको समझ आए हैं, आई होप। एक बार गो थ्रू करते हैं। पहला क्या होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब क्या? दो कैपेसिटीज में वर्क करता है, आउटसाइडर्स के लिए प्रिंसिपल, पार्टनर्स के लिए एजेंट। लॉफुल बिजनेस चाहिए, इलीगल धंधे अलाउड नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स, कैसे? रेशो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड रहेगा, नहीं रहेगा तो इक्वली। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, खुद की जेब से भी पैसे निकाल के फर्म के लिए देने पड़ सकते हैं। कोई पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका शेयर भी आपको देना पड़ सकता है, उसके खुद के लाइबिलिटीज के लिए नहीं देना पड़ता, सिर्फ पार्टनरशिप के रिलेटेड जो लाइबिलिटीज है उसी के लिए देना पड़ता है। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, जॉइंट, सेवरल। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऑप्शनल, बट इट इज रेकमेंडेड। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मिल के सब ओन करते हैं, मैनेज करते हैं। प्रिंसिपल एजेंट 2 बार दिया है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे करते हैं? डिसोल्यूशन अपने आप से करना है, म्यूचुअली डिसाइडेड है, तो क्या नेसेसरी है? 14 डेज क्लियर नोटिस देना नेसेसरी है। और इंसॉल्वेंट हुआ, इनसेन हुआ, रिटायर हुआ, ये चीजों में भी डिसोल्यूशन हो सकता है, ओके। सो दैट वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इधर उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड कैसे किया जाता है। पार्टनरशिप डीड में क्या बोला है, हमने डिस्कस किया था, इट इज द रिटन फॉर्मेट ऑफ द एग्रीमेंट विच इज डन बिटवीन 2 पार्टनर्स। अभी उन्होंने नीचे मेंशन किए व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड।
तो उसमें क्या क्या मेंशन होता है? फर्स्टली दे हैव नेम एंड एड्रेस. नेम एंड एड्रेस किसका? सबसे पहले तो फर्म का. आप आपका बिजनेस कहाँ चालू करने वाले हो, व्हाट इज द प्लेस, वेयर इज योर रजिस्टर्ड ऑफिस गोइंग टू बी, वो फर्म का एड्रेस इधर मेंशन होता है. फिर सब पार्टनर्स का जो है वो भी एड्रेस उधर मेंशन होता है. एंड इंपॉर्टेंटली क्या मेंशन होता है? ड्यूरेशन पार्टनरशिप के लिए. ओके, सो कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप की गई है ये भी उधर स्टेटेड रहता है. उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक इंसान कितना पैसा देने वाला है while starting the partnership firm, so that is given capital contribution. Next, ratio is given, किस चीज का? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर करने हैं वो भी दिया होता है. नेक्स्ट इज राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स. सो पार्टनर्स के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाले हैं. से ऐसे डिसाइड हो सकता है कि ये पार्टनर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, दूसरा पार्टनर जो है वो रेंट भरेगा. तो ये सब किसमें डिस्क्लोज होता है? इन द पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. ये हमने देखा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होते टाइम क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे ये सब दिया होता है. नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा. तो पार्टनर ने कोई अमाउंट जो इन्वेस्ट की रहती है बिजनेस में, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द पार्टनरशिप फर्म विल बी कॉल्ड एज देयर कैपिटल. सिमिलरली इफ द फर्म इज इन नीड ऑफ मनी एंड द फर्म बोरोज मनी फ्रॉम द पार्टनर्स लाइक अ लोन, तो उस लोन पे भी इंटरेस्ट क्या रहेगा? सिमिलरली इफ पार्टनर्स विड्रॉ मनी फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज, देन दैट टाइम व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट इन्वॉल्व? ये सब कहां दिया गया होगा? पार्टनरशिप डीड में. देन सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ they are payable to partners. Settlement of accounts on dissolution. So when the firm will be dissolved, when the firm will be shut down, what is the payments which are going to be made to the partners? That is given. Then method of settlement of dispute. अगर कोई झगड़ा हुआ, argument हुआ, बंद कर रहा है partnership, तो disputes कैसे handle होंगे? Any other matter relating to the conduct of the business. तो all this is specified in the partnership deed. It is a written document. आपको दिख रहा होगा, इधर format दिया गया है. Okay. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. जैसे मैंने आपको बोला कि रिटन फॉर्मेट में होना क्यों जरूरी है, ताकि इट कैन एक्ट एज एविडेंस. उस वजह से क्या होता है कि पार्टनर्स में जो डिस्प्यूट होने वाले हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी नोस कि हमने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हम साइन कर चुके हैं. ओके, सो नीचे लास्ट लाइन क्या दी गई है? इट इज ऑलवेज इन द फेवर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स and registered under the Indian Partnership Act. So always क्या होता है? It is always in favor. कैसे होना? written format में होना और registered होना ही beneficial रहता है. written format ताकि partners पे check रहे, क्योंकि उन्होंने उधर already sign कर दिया है, उन्होंने already सब terms condition agree किए हैं, इसीलिए तो partnership में है. and registration जैसे मैंने बोला, उसको partnership firm को अपना एक अलग existence मिल जाता है ताकि वो action ले सके court of law में. okay? नेक्स्ट, उन्होंने हमको कोई डिटेल्स दिए हैं रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नाउ दीज आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर मेंशन्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इसका स्टार्टिंग पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए आई एम रीडिंग इट, प्लीज रेफर टू इट. स्टार्टिंग पैराग्राफ में बोला गया है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर मेंशन्ड इनटू द डीड. ओके, तो जनरली क्या होना चाहिए कि पार्टनरशिप बनते टाइम ही एक एग्रीमेंट फॉर्म होना चाहिए, उसका रिटन एक प्रूफ बनना चाहिए, दैट इज द पार्टनरशिप डीड, और उसमें सब कंडीशंस और सब रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाने चाहिए. ये आइडियल सिचुएशन होता है. बट इफ partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provisions in the Indian Partnership Act 1932. Section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issues. Okay, so ये जो उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए हैं, व्हॉट डू यू नीड टू रिमेंबर? तुम्हाला ह्याच्यात काय लक्षात ठेवायचं आहे की या 6 पॉइंट्स बद्दल जर एग्रीमेंट मध्ये काहीतरी लिहिलं असेल तो what is going to be followed? Agreement. Okay, so if something is written about these 6 points in the agreement, what will be followed? Agreement. But if it is not written in the agreement, what will be followed? The rules or the provisions given in the Indian Partnership Act. Okay, जो हमने पहले ऑलरेडी प्रोविजन डिस्कस कर चुके हैं वही एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. लेट अस सी. They have given distribution of profit. Okay, यही हमने डिस्कस किया था. What they have given?
if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, if the partnership deed has given the ratio say 2:3, 1:1, then कौन सा ratio apply होगा? वो ratio apply होगा. But if partnership deed is silent about the ratio, तब क्या होगा? Then equal ratio apply होगा. क्लियर? सो ये 6 पॉइंट्स में से कोई भी चीज के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आपको कहां मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज पॉइंट्स इन द पार्टनरशिप डीड, देन व्हाट इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू द पार्टनरशिप फॉर्म? द पार्टनरशिप डीड. बट अगर पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कौन सा अप्लाई होगा? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड रूल्स है, वो अप्लाई होंगे. क्लियर? Next, interest on drawings. So as per provisions of the Indian Partnership Act, if date of drawing is not given, very important, if date of drawing is not given, the average of 6 months interest is charged on drawings. Okay, so date दी गई, date नहीं दी गई है तो क्या करोगे आप? 6 months एवरेज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालोगे. लास्ट ईयर भी हम सेम फॉलो करते थे, याद है क्या आपको? Whenever we were asked to calculate, से ड्रॉइंग्स रहते थे 100 रुपीज के, 100 रुपीज के ड्रॉइंग्स है, उस पे 6% बोला है इंटरेस्ट, तो वी ऑलवेज वी यूज टू कैलकुलेट इनटू 6/12. ऑलवेज हम एवरेज ही करते थे अगर डेट नहीं दिया है. क्लियर? सो दैट इज मेंशन्ड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. If the partner provides additional amount to the business as loan, but rate of interest on loan is not given, then 6% per annum interest is allowed. तो अगेन, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि अगर इफ पार्टनर्स आर गिविंग लोन टू द पार्टनरशिप देन दे शुड बी गिवन 8% इंटरेस्ट, वो बोला गया है, वो अलग है. बट नहीं बोला गया है तो कितना देना है? 6% देना ही है. ओके, सो 6% पर एनम. आई एम strictly telling you to read all the points very carefully क्योंकि इसके objective में question आ सकते हैं. Okay, you can get objective questions out of this and there is a high probability that you may go wrong because you read very carelessly. Okay, so please read it properly आणि परत ते रिवाइज करत राहा. ह्याच्यात चुका होण्याच्या खूप probabilities असतात, खूप स्टुडंट्स चुकतात. ओके, सो प्लीज रीड इट केअरफुली. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. What is it given? Very important. If the partnership deed is silent about interest on capital, then interest is not allowed. अगर पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली बोला गया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तब भी दिया जाता है. इफ इट इज मेन्शन्ड, जर पार्टनरशिप डीड मध्ये लिहिलं असेल की इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल द्यायचं तरच देणार, नाही तर देणार नाहीत. पण लोनवर किती, जर दिलं नसेल तर देणार नाही, तसं नाहीये. किती देणार? 6% देणार. ओके, नेक्स्ट इज सॅलरी और कमिशन टू पार्टनर्स. Salary or commission to partners, again as per the provisions in the Indian Partnership Act, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done for the firm. However, partnership deed में बोला गया है तो दे दो, but पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि हमारे एंड से देना कंपलसरी नहीं है, बट आपको अगर खुद की मर्जी से डीड में मेंशन करके देना है तो आप दे सकते हो. And last is admission of a new partner. So as per the provisions of the Indian Partnership Act, no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partners. So no outside person can be admitted into the firm as a partner without the consent of the other partners. अभी ये ना मेंशन होता है नहीं होता है, ये फॉलो करते ही है. ओके, सो मैक्सिमम पार्टनरशिप्स में 100% पार्टनरशिप्स में ये रूल फॉलो होता ही है. ठीक है, तो इधर उन्होंने इसलिए मेंशन भी नहीं किया है डीड के बारे में क्योंकि ये कंपलसरी ही है. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म, किस किस की कंसेंट लगेगी? सब पार्टनर्स की कंसेंट लेना मैंडेटरी होता है. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये 6 पॉइंट्स के बारे में फिर से ध्यान रखो. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? If certain conditions, certain rules are given related to these 6 points, ह्या 6 पॉइंट्सचे कुठलेही रूल्स पार्टनरशिप अग्रीमेंट मध्ये मेन्शन्ड असतील, पार्टनरशिप डीड मध्ये मेन्शन्ड असतील, तर काय फॉलो करायचं? पार्टनरशिप डीड. बट इफ नथिंग इज मेन्शन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल बी फॉलोड? दीज स्टैंडर्ड रूल्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इफ नॉट इन द पार्टनरशिप डीड, इक्वली. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इफ नॉट इन द पार्टनरशिप डीड, always for 6 months. Interest on partners loan, if not in the partnership deed, 6% interest. Interest on capital, if not mentioned in the partnership deed, no interest on capital will be given. Salary or commission,
no salary commission will be given except if agreed in the म्हणजे partnership deed मध्ये असेल तर तुमचं तुम्ही देऊ शकता. And lastly, admission of new partner. So whenever there is an admission of the new partner, consent of all other partners will have to be taken. Okay. So this was about the initial part, that is the definition, the features and the provisions of the Indian Partnership Act. Once again, let's go through the definition only and then we'll wrap up today's session. So as per Indian Partnership Act 1932, कोणत्या सेक्शन मध्ये डेफिनेशन दिली आहे? सेक्शन 4. सेक्शन 4, remember, defines partnership as it is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. Okay, so that was the definition of the partnership. Later we discussed the features, the partnership deed, and lastly the provisions of the Indian Partnership Act 1932. So this was all about the introduction of partnership. From tomorrow we'll start with the partnership final accounts, the capital account explanation, trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, thank you so much. Thank you for being patient. Have a good day.